नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ट्वीट का हवाला देते हुए वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस ने मजलिस से कोई मदद तलब नहीं की और न ही उसे डिप्टी मेयर के ओहदे का पेशकश किया गया। श्रीनिवास यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीएसएमसी के मेयर के ओहदे के चुनाव में टीआरएस की जानिब से मजलिस की तायद पर शदीद तनकीदों का जवाब दे रहे थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री ने खुद सहाफियों से पूछा कि क्या मजलिस एक अछूत जमात है और आगे चलकर कहा कि अगर मजलिस कोई अछूत या शजर ममनुआ जमात है तो फिर मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर पाबंदी लगाए। गवर्नमेंट विप बी सुमन ने निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद पर शदीद तनकीद की और कहा कि उन्हें सबसे पहले अपने हल्के के अवाम से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। నేను అడుగుతా ఈ దేశంలో కేసీఆర్ గారి కంటే పెద్ద హిందూ ఎవరైనా ఉన్నాయా దేశంలో? ఎవరైనా బాధ్యతగా యాగాలు యజ్ఞాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఉండడా? ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ దేశ చరిత్రలో ఆఫ్టర్ 1947 ఈ దేశ చరిత్రలో ఏదైతే యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రభుత్వం ద్వారా కడుతున్నటువంటి దేవాలయం ధైర్యం ఉన్న మొగోడు ఈ దేశంలో ప్రభుత్వ డబ్బులతో కట్టేటువంటి ఒక్క దేవాలయం చూపిమని చెప్పండి. మాట్లాడితే మేమే హిందువులం అన్నట్టు ఈ గుడికి పోయేది కూడా ఇంకా బాకి మా ఇంటికి వచ్చి ఇల్లే నేర్పించినట్టు. హైదరాబాద్ సిటీలో వినాయక చవితి, మాంకాళి జాతర, దుర్గామాత, రంజాన్ కానీ క్రిస్మస్ కానీ ఇన్ని పండుగలు జరిగితే అన్నిట్లో మేము భాగస్వామ్యం. ఈ దేశంలో చరిత్రలో లేనటువంటి పండుగలు అంటే చరిత్రలో మనకు ఉన్నటువంటి పండుగలని ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించేటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం అనేది. ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే ఇక మీ నోటికి వచ్చినట్టు ఇక మేము ఏది మాట్లాడినా చెల్లుతుందని చెప్పి వాళ్ళు ముందే చెప్పారంట ఎంఐఎం వీళ్ళు కలుస్తారని చెప్పి. ఏముంది ఆడ కలవనికే? మీరు అక్కడేమన్నా మాకు సంఖ్యాపరంగా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడితే వాల్యూడ్ అది. మాకేమన్నా సంఖ్య తక్కువ ఉండి మాకున్న ఎక్స్ట్రాఫిష్ ఉన్నాయి 15-20 మందిని మేము పెంచుకోలేము. మాకు అంత ఇట్లా భయానకమైన పరిస్థితి ఉండి ఓడిపోతామనేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే మా వాళ్ళు మేము తీసుకోపోమా? గా మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడతారు. నేను అడుగుతా, పెద్ద పోటుగాళ్ళు అయితే నిజంగానే మీరు పోటీలో ఉంటే నేను అడుగుతా, మీ సంఖ్యాబలం ఏముందని చెప్పి నేను ఎలక్షన్ పోటీ చేసి చెప్పు. ఎవరి ఓట్లు జరుగుతామని చెప్పి ఎలక్షన్లో పోటీ చేసి చెప్పండి. మీకు మెజార్టీ ఎక్కది? ఎట్లా గెలుస్తామనుకోరు? అంటే కర్ణాటకలో స్టాప్ చేసి మధ్యప్రదేశ్లో చేసి అట్లా చేద్దామనుకుర్రా? చెప్పండి, ఎట్లా గెలుస్తామనుకోరు? మెజారిటీ లేదు కదా మీకు, ఎందుకు పోటీ చేశారు? మరి పోటీ చేస్తే మీ సెంట్రల్ మినిస్టర్ని ఎందుకు విలువలే? ఆయన కూడా మెంబర్ కదా. అది మాత్రం మాకు రాదు. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంట్ల దగ్గర ఇనాగ్రేషన్లోకి వచ్చి మాత్రం రంగనాచిలాగా మాట్లాడతారు. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళంగానే ఏమైనదని మాట్లాడతారు. ఇవన్నీ మీరు చూడలేదా? నేను అడుగుతా, బాధ్యతలు ఉండాలి. ఇప్పుడు సెంట్రల్ నుంచి కూడా మినిస్టర్స్ వస్తారు. సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా కార్యక్రమంలో మా ప్రభుత్వం మేము గౌరవంగా చూస్తారు. మా జిల్లాలలో జరిగినప్పుడు మా ఎమ్మెల్యేలు, మా మంత్రులు ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ చేసి ఆ గౌరవప్రదమైనటువంటి పద్ధతులు మేము లేమా? चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर ने शहर में मुफ्त पानी की सरबराही की स्कीम शुरू करने पर जोर दिया है। बीआर के भवन में मौके में बल्दिया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पानी के सारिफिन की आधार कार्ड को PTIN या फिर कस्टमर अकाउंट नंबर से जोड़ा जा सकता है। इजलास में मौके में वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर, जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर भाई सत्यनारायण और दूसरे भी शरीक थे। हैदराबाद सिटी पुलिस के 3 रोजा स्पोर्ट्स मीट्स का आज अख्ताम अमल में आया। शिव कुमार लाल स्टेडियम गोशा महल में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब में वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले कामयाब पुलिस मुलाजिमीन में इनामात तकसीम किए। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस DS चौहान, स्वाति लाकड़ा और दूसरों ने भी शिरकत की। दिलसुख नगर के नारायणा कॉलेज के लेक्चरर्स ने इंतजामिया की तरफ से 10 महीने की तनख्वाह न देने पर एहतजाजी धरना दिया।
उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि नारायणा कॉलेज के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि एक तरफ कॉलेज का इंतजामिया तलबा से लाखों रुपए ट्यूशन फीस वसूल कर रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी तनख्वाहें अदा करने से इनकार कर रहा है। ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు పనిచేసినటువంటి అధ్యాపకులకు కరోనా పరిస్థితుల్లో జీతాలు చెల్లించకుండా యాజమాన్యం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేసి అధ్యాపకులందరినీ కూడా దాదాపుగా 10 నెలల నుంచి రోడ్డు మీద పడేసింది. అందులో భాగంగానే కార్పొరేట్ కళాశాల అయినటువంటి ఈ నారాయణ కాలేజీ అధ్యాపకులను దాదాపుగా 40,000 మంది అధ్యాపకులు ఉంటే 30,000 మంది అధ్యాపకులను ఇలా రోడ్డు మీద పడేసి ఇలా అధ్యాపకుల జీవితాలతోటి అధ్యాపకుల కుటుంబాలతోటి ఆడుకుంటుంది. ఈ యజమాన్యం పైన నారాయణ చైతన్య కాలేజీల యజమాన్యం పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాకముందుకు తెలంగాణ వస్తే వీళ్ళను కాల రాసి రాష్ట్రం నుంచి పంపిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇలా రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 2 దఫాలుగా గెలిచిన తర్వాత ఇలా నారాయణకే తొత్తుగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఉద్యోగులందరినీ రోడ్డు మీద పడేసి ఇలా నారాయణ చైతన్యలకే తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మేము ఒకటే తెలియజేసేది, आंध्र बैंक कॉलोनी मलकपेट में एक 74 साल बेवा खातून से चाकू की नोक पर तलाई चेन छीन लेने वाले एक शख्स टी राजेश को पुलिस मलकपेट ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ई जोन एम रमेश ने मीडिया को बताया कि राजेश को उसके दोस्त के जरिए मालूम हुआ कि पद्मावती तनहा रहती है, चुनाचे उसने पद्मावती को निशाना बनाने का फैसला किया और 8 तोले तलाई चेन छीन ली। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ शहर में तलाई चेन छीनने के कई मुकदमात दर्ज हैं। इंस्पेक्टर सुब्बा राव और एडिशनल इंस्पेक्टर नायक की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में आई। ఇదే మలక్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి ఒక చిన్న పాప అపహరణ కేసులో మలక్పేట్ పోలీసులు 24 గంటల్లో ఆ పాపని సురక్షితంగా రక్షించి ఆ దొంగను పట్టుకోవడం జరిగింది అన్న ప్రెస్ మీట్ జరుగుతూ ఉన్న సమయంలోనే ఇదే మలక్పేట్లో జనవరి 29వ తేదీ రోజు మధ్యాహ్నం సుమారు 3-3:30 గంటల మధ్యలో ఒక ముసలావిడ గొల్ల పద్మావతి గారు, ఈవిడ ఒక రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ గారి వైఫ్, భర్త చనిపోయాడు, ఒంటరిగా ఉంటుంది, పిల్లలు కూడా తనతో పాటు ఉండరు. 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్లో పైన తను ఉంటుంది, కింద ఫ్లోర్లో కిరాయికి ఇచ్చింది. తను సడన్గా ఇంట్లో తను తాళం వేశారని చెప్పేసి పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్తే పక్కింటి వాళ్ళ ద్వారా ఒక డయల్ 100 కాల్ వచ్చి ఆ డయల్ 100 కాల్ ద్వారా పోలీసులు అక్కడికి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సంఘటన ఆవిడ చెప్పిన దాని నుంచి తెలుసుకున్నాము. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మాస్క్ ధరించి ఇంట్లోకి వచ్చాడు, కత్తితో బెదిరించాడు. తను ఫ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వెనక నుంచి నోటిని పట్టుకొని అదింపట్టి నోరు మూసి కత్తి చూపించి బంగారు ఆభరణాలు ఇవ్వాలి అని ఒక దొంగతనం కమిట్ చేశాడు. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో లీగల్ టర్మినాలజీలో రాబరీ అని అంటాము. అదృష్టవశాత్తు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఆవిడ భయంతో తన ఒంటిపైన ఉన్న ఆభరణాలని అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో అతను తీసుకొని వెళ్తూ బయట నుంచి ఆ తలుపు గడియబెట్టి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ సంఘటన తెలుసుకున్న వెంటనే లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, ఇన్స్పెక్టర్ డిఐ, తర్వాత ఏసీపీ, అడిషనల్ డీసీపీ, టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ, నేను కూడా రావడం జరిగింది. సంఘటన జరిగిన వెంటనే అందరినీ ప్రశ్నించడం, ఆధారాల కోసం సేకరించడం, డాగ్ స్క్వాడ్ని కూడా పిలిపించాము, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కూడా చూసాము. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక సరైన క్రమంలో జరుగుతుంది అని అనిపిస్తూ ఉంది. కొంత క్లూ వచ్చింది, ఆ క్లూ ప్రకారం ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాము. ఎవరు చేసి ఉంటారు అన్న దానిపై కంప్లైనెంట్ పద్మావతి గారే కొంత అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తన ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న ఇంట్లో కొందరు విద్యార్థులు, అంటే బ్యాచిలర్ స్టూడెంట్స్, కొందరు అద్దెకుండే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బాగా అల్లరి చేసేవాళ్ళు పిల్లలు, లేట్ నైట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే పాండమిక్ తర్వాత చాలామంది పిల్లలు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళంతా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఎవరెవరు ఉన్నారు, వాళ్ళ పూర్వాపరాలన్నీ తెలుసుకోవడం కొంత ఆలస్యమైంది. తర్వాత నిన్న మాకు రూఢీగా తెలిసిన తర్వాత ఈ ముద్దాయి ఎవరైతే ఉన్నారో నిందితుడు రాజేష్, గతంలో 5 కేసుల్లో నిందితుడు, మోటార్ సైకిల్ దొంగతనాల్లో ఎస్ఆర్ నగర్, డుండిగల్, మలక్పేట్ వీటన్నిటిలో నిందితుడు.
ఈ ఇదే మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో గత సంవత్సరం జనవరిలో అరెస్ట్ కాబడిన వ్యక్తి అని తెలిసింది. ఇతనికి సహాయకారిగా పద్మావతి ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో విక్టిమ్ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్న కింది ఫ్లోర్లో అద్దెకుంటున్న వారి కూతురు రజని అనే అమ్మాయి, 20 సంవత్సరాల అమ్మాయి, స్టూడెంట్, చదువుతుంది. వీడు ఇంటి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు నవంబర్లో ఖాళీ చేయకుండా ముందు వరకు కూడా ఈ అమ్మాయితో సాన్నిహిత్యం ఉండేది. తరచుగా సెల్ ఫోన్ ద్వారా సంభాషించుకునేవాళ్ళు. నార్మల్ సెల్ ఫోనే కాకుండా ఇతర అప్లికేషన్, సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ ద్వారా కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో. चामिना के पास तुआल और दस्तियां बेचने वाले मोहम्मद नवीद पर कातिलाना हमला करने वाले 4 अफराद को पुलिस हुसैन आलम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, मोहम्मद नसीरुद्दीन उर्फ गन्ना नसीर, सिद्दीक बिन मोहम्मद और शफी बताए गए। पुलिस के मुताबिक 8 फरवरी को शाम में नवाब साहब कुंटा का रहने वाले मोहम्मद नवीद पर हमला किया गया था। मामला सिर्फ इतना था कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद चाहता था कि सड़क पर उसकी दुकान के सामने कोई और दुकान ना लगाए। मीनार के पास में एक झगड़ा हुआ था। इसमें मोहम्मद मजीद और नहीद जो टवल बेचते और बैग बेचते और उसके खिलाफ है वो 4 लोग। इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलियास चौश वो हैंड बैग बेचता है वहीं पे। दोनों के बीच में वहाँ फुटपाथ पे स्पेस के लिए झगड़ा हुआ और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इलियास चौश जो है वो अपनी फ्रेंड्स को बुलाए। इसमें सादिक बिन महमूद, मोहम्मद शफीउद्दीन और एक मोहम्मद नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर, ये तीनों को बुलाए और ये लोग आए रॉड लेके इसको जो मोहम्मद मजीद को मारे, उसका पैर में फ्रैक्चर हुआ। चार मीनार का इलाका जो है बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे पूरा हैदराबाद में बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और पूरा मीडिया का फोकस रहता है वहाँ पे। इस जगह में ऐसा इंसिडेंट होना जो सब लोग देख रहे और ये जो पीक टाइम पे जब टूरिस्ट आते हैं उस टाइम पे हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सेंसेशनल हुआ। उसी दिन ये 3 लोगों को अरेस्ट कर दिए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इलियास चौश, सदीक बिन महमूद और मोहम्मद शफीउद्दीन। और अभी कल मोहम्मद नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर उसको अरेस्ट किया गया। नसीरुद्दीन इलियास गन्ना नसीर वो भवानी नगर का रहने वाला है और उस पर पहले एक राउडी शीट था, क्योंकि उसका एज ज़्यादा हो गया, वो उस पर पिटीशन किया तो 1-2 साल पहले उसका शीट क्लोज कर दिया है। अभी फिर उस पर रीओपन कर रहे हैं राउडी शीट और उस पर नज़र रखेगी। और हैदराबाद पुलिस की तरफ से यही मौक़िफ़ है हमारी कि यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले, राउडी एक्टिविटीज़ करने वाले किसी टाइम पे किसी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे। एज़ पर लॉ बहुत सख्त एक्शन लेंगे उन पर। और कोई भी वहाँ पे गुंडागिरी करेगा और कुछ मामूल जैसा कलेक्ट करना है तो जब भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाइए। किसी पे ये इल्ज़ाम लगा तो पूरा इंक्वायरी करके अगर कुछ सच निकला तो उस पर एक्शन लेंगे। इस पे आप जो बताए इसके लिए हम GHMC, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर तीनों मिलके इस पर एक्शन लेना है। हम एक बार सब अथॉरिटीज़ को मिलके हम इस पे एक रिव्यू करेंगे तो एक्शन लेना। ऐसा बात नहीं, ये जो कोविड के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गया पूरा, सब लोग का पूरा 6 महीने एटलीस्ट 4-5 महीने तक पूरा डिस्टर्ब हो गया। किसी शॉप का किसी बिजनेस नहीं चला और जब वापस बिजनेस आए तो हम थोड़ा रिलैक्स किए उतना, क्योंकि वो बहुत बिजनेस में लॉस हुए। लेकिन जब ज़्यादा अभी हो गया और थोड़ा एक वायलेंस का इंसिडेंट भी हुआ तो हम कल भी हम बहुत केस लगाए, पूरा क्लियर कर दिए। और ऐसा कोई है तो इमीडिएटली हमारे नज़र में लाए, हम एक्शन लेंगे जरूर। ये हमारे नज़र में आ गया अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो अभी कुछ भी है तो
डायरेक्टली मुझे आप बोल सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। नहीं, कल से पूरा एक्शन लिया, कल रात से देखेंगे। आज कल रात भी बहुत पूरा क्लियर कर दिया वहाँ पे। पूरा जाने का आने का पूरा रास्ता तो अभी क्लियर कर दिए। जो अनऑथराइज्ड है उस पर केस भी लगाए, कल भी लगाए। कल तो पेटी केसेस 60 के आसपास केस लगाए। कल एक्शन तो ले रहे हैं अभी। नहीं, क्योंकि वहाँ पे काम करना अगर कम्युनल इशू हो जाए तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं। चार मीनार में भी होना, ये देखेंगे हैदराबाद में कहीं भी देखे, स्पेशली बिजनेस सेंटर्स में दोनों कम्युनिटी का रहेंगे। दोनों कोई भी अनेक कम्युनिटी का है, सब लोग मिल, उसमें कम्युनिटी का डिफरेंस नहीं है। बिजनेस, जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, कारोबार कर रहे हैं, अगर वो लीगली कर रहे हैं एज़ पर रूल्स ऑफ GHMC, एज़ पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट, उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को आपके मामूल को डिमांड किया, किसी को आपको धमकी दे रहे, आपको गुंडागर्दी कर रहे, तो इमीडिएटली हमें कंप्लेंट कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे। अभी तो बात करना है उनसे। GHMC का वो परमिशन है, उनको रहने का हक है। खांगी कॉलेजों में ट्यूशन फीस की वसूली के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनों ने नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। उनका मुतालबा था कि हुकूमत ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करे। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने बादशाह गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन बेगम बाजार को मुंतकिल किया। नरीटपेट में एक 15 साल तालिबा यशवी की खुदकशी पर उसके रिश्तेदारों और मोहल्ले विनायक नगर में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। बताया जाता है कि रविंद्रा भारती स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा यशवी ने ट्यूशन फीस की अदायगी के लिए स्कूल इंतजामिया की तरफ से मुसलसल हिरासानी के सबब खुदकशी कर ली थी। मलकाजगिरी के TRS रुकन असम्बली M हनुमंतराव ने लड़के के घर पहुंचकर उसके वालिदैन से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने मंडल एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी कि वो मज़कूरा स्कूल को बंद करते हुए इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और पुलिस में भी एक मुकदमा दर्ज करवाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि कोविड-19 की वबा के चलते 10 महीनों तक बंद रहने के बाद तालीमी इदारों के दोबारा खुलने पर स्कूल इंतजामिया पूरे साल की फीस की अदायगी के लिए इसरार कर रहा है। ऐसा मामला सिर्फ रविंद्रा भारती स्कूल या फिर नरीटमेट तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी रियासत तेलंगाना में ऐसा ही चल रहा है। Entire world was suffering with corona. Recently, first schools has been started, and one girl, she committed suicide. School principal has pressured her regarding fees. Already, her parents has paid 10,000 rupees, and remaining balance they promised to pay on 20th of this month. But even then, management was trying to suppress her, so she committed suicide. I'm really sorry for that. I talked to our KTR, Honorable Municipal Minister. He promised for double bedroom, and whatever we can do from our side, including all parties in Malkajgiri, we are funding like around we are 5 lakh rupees and 50,000 from the MRO, and we are demanding. The parents are demanding school management for 20 lakhs, but no one turned up till now. All phones are switched off. We are going to take it very serious. Management has to act and see that they'll get 20 lakhs from the management, and we'll see that remaining some money we are going to get from the government too. Thank you very much. स्कूल लाइसेंस को कैंसिल 14 फरवरी को यौम आशी खान मनाने के खिलाफ बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने एबिट सर्कल के पास एहतजाजन ग्रीटिंग कार्ड जलाए। बजरंग दल के रियासती कन्वीनर सुभाष चंद्र ने कहा कि वैलेंटाइन डे मगरिब की तहजीब का हिस्सा है और वैलेंटाइन डे के दिन पार्क और पब को जाना, तोहफे तवायफ देना हिंदुस्तानी तहजीब के मगायर है। शाही मस्जिद बाग़ियामा के इमाम मौलाना हाफिज शाह मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-हुमी का जुमे की शाम को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा और तस्वीर से मुतालिक तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। किसरा पुलिस ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नागाराम में चारशंबे को डिग्री कॉलेज की एक 19 साला तालिबा की इज्तिमाई असमत रेजी के केस में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की मेदपल्ली के एक दवाखाने में जेर इलाज है और वो अपना बयान देने से खासे रहे। इस वाक़े को 2019 में शादनगर में पेश आए असमत रेजी के संगीन वाक़े से जोड़ा जा रहा है, जिसके मुल्ज़िमीन को
एनकाउंटर में मार दिया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने तुर्की में 14 था 24 फरवरी खेले जाने वाले लड़कियों के फुटबॉल मुकाबलों के लिए निजामाबाद की वन्नीसाला जी सोमैया को कप्तान मुकर्रर किया है। सोमैया के वालिद एक स्कूल टीचर है, जबकि मां धनलक्ष्मी गृहस्थ खातून है। टीआरएस की रुकने खानसाज काउंसिल की कविता ने सोमैया के कप्तान मुकर्रर किए जाने पर नेक तमन्ना का इजहार किया और कहा कि वो मुल्क का नाम रोशन करेंगी। शहर में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस की जानिब से गाड़ी वालों को जदोकोब करने के वाक़ात भी रोनमा हो रहे हैं। ऐसे एक वाक़े में बाबूघाट लंगर हाउस में जुमेरात की रात को पेश आया। लंगर हाउस पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड ने एक बाइक सवार को रोककर उसे मारपीट की। उस वक्त उस शख्स की बहन भी मौजूद थी। बहन का कहना है कि होमगार्ड के रवैये पर एहतजाज करने पर उनके भाई को सब इंस्पेक्टर एलैया और दूसरे पुलिस वालों ने भी जदोकोब किया और फिर लाकअप में बंद कर दिया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसमुद्दीन की मदाखलत पे इस नौजवान की रिहाई अमल में आई। इसी दौरान इंस्पेक्टर पुलिस लंगर हाउस ने बताया कि कल के वाक़े के सिलसिले में 3 अफराद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। बाबूनगर के पास जा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस वाला रुकाया, तो हम लोग साइड में ले रहे थे गाड़ी, डिवाइडर आया बीच में, तो साइड में ले रहे थे, उन्हें क्या समझा भाग रहे, उन्हें एकदम गाड़ी को हाथ लगा के डायरेक्ट थप्पड़ मार दिया। तो हमारा भाई पूछा कहीं को मार रहे बोल के, तो फिर से एक थप्पड़ मारे उन्होंने, फिर और एक थप्पड़ मारे, फिर तीसरा थप्पड़ मारने गया उन्हें तो मेरे को लग गई मार। उसके बाद कई को कैसा मारते औरत बच्ची के ऊपर बोल के मेरा भाई वहाँ जरा ऐसा धक्का भी नहीं, धक्का दिया जैसे डिवाइडर आ गया तो गिर। मैं मेरे भाई थे और भी कोई दोस्त था? नहीं, कोई भी नहीं थे। तो धक्का लगते साथ ही पुलिस वाले वहाँ से और जितने भी है उन्होंने भाग लेते आके शुरू करे खींचना, हाथ पकड़ के खींच रहे कर रहे थे, तो पब्लिक जमा हो गई पूरी। तो कैसा लेते लेडीज़ एलियास सर बोल के नाम है उनका, उन्होंने खींचे और उन्होंने फर्स्ट जब तीसरी बार पचकर भी लगा मेरे को और इनडायरेक्टली नो पार्ट्स पे छी दिए यहाँ पूरा पब्लिक में खींच के लेके गए इनको। हाँ, हम लोग के पास प्रूफ है, वीडियो है हम लोग के पास। इनका भी हाथ पकड़ के खींच के ऑटो में लेके जाके जेंट्स पुलिस जो है जमा बिठाए, जबकि जेंट्स को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है लेडीज को। जेंट्स को और बिना वजह फालतू का मारे, सीधा बात कर ली तो मारे वहाँ रोड पे मार के लेके और यहाँ पब्लिक बोल रहे तो भी नहीं सुन रहे थे उन्होंने। पूरी पब्लिक हम लोग के सपोर्ट में है। आप लोग ये जुल्म ज्यादा हो जा रहा इसका, ये ट्रैफिक पुलिस का, जहाँ बोले वहाँ पकड़ ले रहे। लेडीज के साथ कैसा पकड़ते हैं, लेडीज के साथ तो नहीं पकड़ना, आप लेडीज को भी पकड़ ले रहे, गाड़ी ले लेना, मारे कैसा, हाथ कैसा उठाते, लेडीज के ऊपर नहीं उठाना, लेडीज के ऊपर हाथ कोई नहीं उठाना। लेडीज के ऊपर हाथ उठाने से स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोग लेना। आप लोग हम लोग को सपोर्ट नोच दिए भी उनका। कुछ प्रूफ है क्या वो लोग कैसा पकड़ गए? इनके पास है, देखो इनका हाथ कर दिए, कर दे के लेके गए इनको पूरा खींच के ऐसा जोर से। पुलिस आप लोग इन्हों प्रोटेक्शन कर रहे हैं भाई की, जबकि गलत इल्ज़ाम लगाए हमारे भाई मारे बोल के पुलिस वाले के ऊपर। सुबह से मार रहे मेरे भाई को, अंदर पुलिस स्टेशन में रख और रोलेते भी आए, मार रहे बोल के, मार रहे बोल के ऐसा बुरा मार रहे। अगर ऐसा चलता रहेगा तो कैसा होगा? ये ट्रैफिक पुलिस वालों के जुल्म ज़्यादा हो जा रहे, हर जगह पे हर रोड पे पकड़ रहे, जो बोले उनके बच्चों को लाके डाल दे रहे हैं यहाँ पे। लोग हमारे सपोर्ट करे तो हमारे लोगों सपोर्ट करना भी गुनाह हो गया। लोगों को भी लेके आके चार बच्चों को अंदर लेके आके रखे उन लोगों को। बस हम लोग को इंसाफ बना। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कौसर साहब आके एमएलए साहब हम लोग का हेल्प करे, हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते उनका। बस हो गया अब आगे ना हम लोगों की सॉल्व हो गई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और के साथ ऐसा नहीं करना, बस ऐसा नेक्स्ट टाइम से नहीं करना। हाथ नहीं लगाना, बच्ची को रहो, बच्चा को रहो, किसी को भी हाथ नहीं लगाना। जेंट्स मार रम तोड़ी नहीं करना। अगर आगे वाला कोई भी मारा तो अपना बच्चा भी मारेंगे ना, उन्हें उसको कौन दिए राइट्स? पुलिस वाले को कौन बोले मारो बोल के? क्या गलती है बच्चे की? बच्चे कहने गाड़ी का पेपर से, गाड़ी की आरसी है, गाड़ी का नंबर प्लेट है, सब है। बच्चे को कहीं को पकड़े भाई, पकड़ने की लोगों को पूछो आप लोग। बस रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा कि टीआरएस तेलंगाना की नाकाबिल तस्खीर जमात है और उसे कोई भी जमात शिकस्त नहीं दे सकती। सत्यावती राठौर महबूबाबाद में टीआरएस पार्टी की रुकन साजी मुहिम का इफ्तिताह कर रही थी। ये मुहिम 28 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात खासकर किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली शंकर नायक, एग्रो के चेयरमैन एल किशन राव,
जिला परिषद चेयरमैन कुमारी बिंदु और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने नारायणखेड़ मंडल का दौरा किया। इससे कबल उन्होंने तेलंगाना और कर्नाटक के सरहदी जिले बीदर के एक मौजे में तौक़ुफ़ किया। उन्होंने मकामी किसानों से मुलाकात करते हुए उनकी रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक सवालात किए। आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर 37 साल के रमेश का जुमेरात की रात को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर पुलिस गोविंद राजू ने बताया कि रमेश अपने 5-6 साथियों के साथ नवाही काकीनाडा में एक तकरीब में शिरकत के लिए गया था, जहां उसकी चिन्ना नामी एक शख्स के साथ बहस हो गई। जब रमेश वापस हो रहा था तो चिन्ना ने अपनी कार से रमेश को टक्कर दे दी और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसकी बरसरामौका मौत हो गई। मेस्को के हाई स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए मुनक़िदा 5 रोज़ा सरमाई स्कूल प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब मेस्को एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुस्तैदपुर में मुनक़िद हुई। शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेस्को के सदरनशीन डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली की गुलपोशी की गई और उन्हें तहनीत पेश की गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें बुज़दिल करार दिया और कहा कि उनमें चीन से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है। उन्होंने अपनी जमीन चीन को खामोशी के साथ दे दी। इस तरह उन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के कल के बयान पर हुई तनकीद की। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दें।